નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાતી સેકન્ડ લેંગ્વેજ જેનું પ્રથમ કાવ્ય જેનું નામ છે મોરલી, જેની કવિયત્રી છે મીરાબાઈ, જેનો જન્મ 16મી સદીમાં એટલે કે 16th સેન્ચુરીમાં થયો હતો. મધ્યકાલીન કવિ કહેવામાં આવે છે. મીરાબાઈનો જન્મ રાજસ્થાનના મેડતાના કુડકી ગામમાં થયો હતો. તેમનો જન્મ એક રાજ પરિવારમાં થયો હતો. નાનપણથી તેમને કૃષ્ણ ભક્તિનો રંગ લાગ્યો હતો. તેઓ સાધુ સંતો સાથે બેસતા હતા અને પોતાનું જીવન કૃષ્ણમય વિતાવ્યું હતું. પદ પ્રકાર છે અને મીરાના શ્રેષ્ઠ પદોમાંથી આ કાવ્ય લેવામાં આવેલું છે. તેમણે વજ્ર, ગુજરાતી, હિન્દી અને મારવાડી આમ 4 ભાષાઓમાં તેમના પદ આપણને જોવા મળે છે. મીરાબાઈનો લગ્ન બાળપણમાં જ કરવામાં આવ્યું હતું. એવું કહેવાય કે તેઓ એક કુરિવાજના શિકાર બની ગયા હતા, બાળ લગ્ન જેવા. આથી તે સમયે પણ આ કુરિવાજ પ્રચલિત હશે તેવું આપણે માની શકીએ છીએ. તેમનું લગ્ન પછી તેમના પતિનું મૃત્યુ થયું. આથી તેઓ બાળપણમાં જ વિધવા બન્યા, પરંતુ તેઓ બીજા એક કુરિવાજના શિકાર બની ગયા, જેને આપણે દેવરવટુ કહેવામાં આવતું હોય છે. એટલે કે તેમનું પુનઃ લગ્ન તેમના દિયર સાથે કરવામાં આવ્યું, પરંતુ તેઓ કૃષ્ણ ભક્તિના રંગે રંગેલા હોવાને કારણે તે લગ્ન તેમને સ્વીકાર્ય ન હતું. અને પહેલાં તેઓ રાજસ્થાન, પછી વૃંદાવન અને અંતે દ્વારકામાં પોતાનું જીવન વિતાવે છે. અહીં એક કૃષ્ણ ભક્તિનું પદ મોરલી પહેલા હું ગાન કરીશ. વાગે છે રે વાગે છે વૃંદાવન મોરલી વાગે છે, વાગે છે રે વાગે છે વૃંદાવન મોરલી વાગે છે. તેનો નાદ ગગનમાં ગાજે છે, વૃંદાવન મોરલી વાગે છે. વૃંદાતે વનને માર્ગે જાતા, વૃંદાતે વનને માર્ગે જાતા. વાલો દાણ દધીના માગે છે, વૃંદાવન મોરલી વાગે છે. વૃંદાતે વનમાં રાસ રચાયો, વૃંદાતે વનમાં રાસ રચાયો. હે વાલો રાસ મંડળમાં બિરાજે છે, વૃંદાવન મોરલી વાગે છે. પીળા પીતાંબર જર કસી જામા, પીળા પીતાંબર જર કસી જામા. પીળો તે પટ્ટીકો બિરાજે છે, વૃંદાવન મોરલી વાગે છે. કાને તે કુંડળ મસ્તકે મુકટ, કાને રે કુંડળ મસ્તકે મુકટ. મુખ પર મોરલી બિરાજે છે, વૃંદાવન મોરલી વાગે છે. વૃંદાતે વનની કુંજી ગલીમાં, વૃંદાતે વનની કુંજી ગલીમાં. હે વાલો
થનક થનક થઈ નાચે છે વૃંદાવન મોરલી વાગે છે. ભાઈ મીરા કે પ્રભુ ગિરિધર ના ગુણ, ભાઈ મીરા પ્રભુ કે ગિરિધર ના ગુણ. એના દર્શન થકી દુઃખ ભાગે છે વૃંદાવન મોરલી વાગે છે. વાગે છે રે વાગે છે વૃંદાવન મોરલી વાગે છે. હવે આપણે આ કાવ્યને સશબ્દ સાથે જોઈએ કે વાગે છે રે વાગે છે વૃંદાવન મોરલી વાગે છે, એટલે કે भगवान कृष्ण की मुरली वृंदावन की कुंज गली के अंदर बज रही है. वृंदावन એટલે કે શબ્દ સમૂહ માટે એક એક શબ્દ. તુલસીનું વન એટલે કે वृंदावन. वृंदावन के अंदर भगवान कृष्ण मुरली बजाते थे. એનો નાદ ગગનમાં ગાજે છે એટલે કે उनकी बांसुरी की जो आवाज है, उनकी आवाज आसमान यानी गगन तक पहुंच गई है. वृंदा ते वन ने मार्गे जाता वालो दाण दधी ना मांगे छे. उनका मतलब यह होता है कि गोकुल में बहुत सारी गायें थी. इस गायों का दधी दधी यानी दही दही बेचने के लिए गोपियां मथुरा जाया करती थी. तो भगवान कृष्ण बीच रास्ते में, मथुरा से जाने वाले बीच रास्ते में गोकुल के मार्ग पर खड़े रहते थे और गोपियों को कहते थे दान. दान यानी जकात, कर, वेरो, या तो इंग्लिश में उनको कहा जाता है टैक्स. वो दान मांगता था दधी यानी दही का, कि आप लोगों को अगर यहाँ से दही लेके जाना है तो मुझे पहले दही खिलाना पड़ेगा. बाद में वृंदावन की कुंज गली में जंगल के अंदर वो रास खेलता था, यानी रास मंडल, यानी चारों तरफ गोपियाँ रास खेलती थी, बीच में भगवान कृष्ण बिराजते थे. इसलिए कहा गया है कि रास मंडल में बिराजे छे. अब दूसरी दो लाइन के अंदर भगवान कृष्ण के बाह्य स्वरूप का वर्णन दिया गया है कि भगवान कृष्ण ने कैसे कपड़े पहने हैं, किस तरह से वो दिखते हैं. इनकी बात बहुत अच्छी तरह से दी गई है कि पीड़ा पीताम्बर जर कसी जामा. पीला पीताम्बर, पीत प्लस अंबर, पीड़ वस्त्र यानी पायजामा पहना हुआ है. जरकसी जामा, जरकसी यानी जरी से भरा हुआ पायजामा पहना हुआ है. पीला पीताम्बर पहना हुआ है. पीड़ो ते पटको बिराजे छे. पटको, पटको मतलब यह होता है कि अधो वस्त्र, या तो एक पीले कलर का कंधे पर डालने वाला एक वस्त्र, तो एक पीला वस्त्र उनके कंधे पर डाला हुआ है. काने ते कुंडल मस्तक के मुगट. कान के अंदर कुंडल और मस्तक पे जहाँ राजा महाराजाओं की तरह उन्होंने मुकुट पहना हुआ है. मुख पर मोरली बिराजे छे, यानी उनके मुख पर बांसुरी है जो वो बजाते थे. इस तरह से भगवान कृष्ण का बाह्य स्वरूप का वर्णन दिया गया है. अब भगवान कृष्ण कहाँ और किस तरह से गोपियों को रिझाने के लिए नाचते थे, उनका वर्णन बाकी की दो लाइन में दिया हुआ है कि वृंदाते वननी कुंजी गली में. वृंदावन की कुंज गली, कुंज गली का मतलब होता है कि साकड़ी गली. यहाँ ऐसा होता है कि दोनों तरफ, बगीचे के अंदर दोनों तरफ क्या होता है कि लता बेल होती है और एक दूसरे से मिल जाती है, नीचे छाव होती है और जहाँ बैठ के बातें की जाती है. वैसे कुंज गली के अंदर भगवान कृष्ण थनक थनक थई नाच रहे हैं. बाई मीरा के प्रभु गिरिधर ना गुण. अब मीराबाई कहती है, हे प्रभु गिरिधर.
गिरी पर्वत को धारण करने वाला भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गिरी यानी पर्वत को उठाया था, इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम गिरिधर तब से पड़ा है। गिरी पर्वत को धारण करने वाले अगर ऐसा हम करेंगे तो वह उपपद समास, और गिरी पर्वत को धारण करने वाले भगवान कृष्ण अगर इस तरह से करेंगे विग्रह तो बहुव्रीहि समास होगा। यानी भगवान के दर्शन से हम जैसे भक्तों का, मीराबाई कहती है कि उनके दर्शन से भक्त के दुख कष्ट पीड़ा जो होती है वो दुख दष्ट कष्ट पीड़ा में से मुक्ति मिल जाती है। अब जो प्रश्न दिए गए हैं वो प्रश्न के बारी बारी उत्तर हम देखेंगे कि प्रश्न के आंसर हम किस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब प्रश्न पूछा जाए तो इस तरह से लिखना है कि मोरली काव्य का नाम है, कवि का नाम मीराबाई है, प्रकार पद है, किस में से लिया गया है तो मीराबाई के श्रेष्ठ वजन में से लिया गया है। उनका जन्म तो मेड़ता के कुड़की गांव में हुआ था, 16वीं सेंचुरी में हुआ था। कृष्ण भक्त थे, कृष्ण पद के भक्ति की रचना उन्होंने की थी। अगर शब्द समूह यहाँ दिखा जाए तो पीड़ा रंगनु एक वस्त्र यानी पीतांबर, तुलसी थी भरेलू वन यानी वृंदावन, काने પહેરવાનું एक घरेणु यानी कुंडल, गिरी पर्वत को धारण करने वाला यानी गिरिधर, कसबना भरतवाड़ू यानी झरकसी, જ્યાં આજુબાજુમાં વૃક્ષો વાવેલા હોય તેવી ગલી यानी कुंज गली, कमरे के माथे बांधવામાં આવતો एक कटको यानी पटको। अगर संधि देखी जाए तो पीत प्लस अंबर पीतांबर। प्रश्न के मोरली काव्यना आधारे कृष्णनी रासलीलाનું वर्णन તમારા शब्दों करो। तो जवाब, सबसे पहले हम ये प्रश्न किसमें से लिया गया है, उनके कवि कौन है, कहाँ से लिया गया है, कौन सा प्रकार है वो लिखेंगे। यानी जो हमारा जवाब जो रहेगा बहुत अच्छी तरह से सामने पेपर चेक करने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जवाब इस तरह से लिखना है कि आ प्रश्न मोरली काव्यમાંથી લેવામાં આવેલ છે, જેના કવિ મીરાબાઈ છે, પ્રકાર પદ છે અને મીરાબાઈના શ્રેષ્ઠ વચનોમાંથી લેવામાં આવેલો છે। અહીં કૃષ્ણ પ્રેમનું આલેખન કરવામાં આવેલું છે। अब सेकंड पैराग्राफ इस तरह से लिखना है कि भगवान कृष्ण वृंदावन में मोरली वगाड़े छे, तेमथी निकळतो अवाज आकाश मंडल में संभळाय छे। वृंदावन में जे गोपीओ मथुरा में दही वेचवा माटे जाय छे, त्या कृष्ण मार्ग रोकी तेमनी पासेथी वीरा रूपे दही मागे छे। वृंदावन में रास रचायो छे, तेमां भगवान वच्चे शोभे छे। वृंदावननी कुंजगली में वालो थनक थनक थई नाचे छे अने भगवानना दुर्लभ दर्शनथी लोकोना कष्ट दूर थाय छे। आम भगवान कृष्णनी रासलीलानुं वर्णन करवामां आवेलुं छे। अब छोटे छोटे सवाल है, जैसे कि एमसीक्यू अगर हम देखेंगे कि कोना दर्शन थी मीराबाईना दुख दूर थाय छे, तो ऑप्शन गिरिधर, विष्णु, शिव के हनुमान। तो हमें लिखना है गिरिधर। मुरलीनो नाद क्या गाजे छे, तो ऑप्शन धरती, गगन, दिशाओं के पाताल। तो गगन लिखना है। मीराबाईनो जन्म क्या थयो हतो, तो नागौर, वाव, कोटा के कुड़की। तो कुड़की लिखना है। अगर कुड़की नहीं है, मेड़ता है तो मेड़ता लिखना है। वृंदावन में वालो शू मागे छे, तो शेरडी, दाण, छाछ के फल। तो हमें लिखना है दाण।
कृष्ण क्या बिराजे छे? तो ऑप्शन है आकाश मंडल, गगन मंडल, रास मंडल के फाग मंडल। तो लिखना है रास मंडल। मुरली क्या वागी रही छे? तो ऑप्शन है गोकुल, मथुरा, काशी के वृंदावन। हमें लिखना है वृंदावन। कृष्ण ए काने शू पहरेलू छे? तो प्रश्न है का ऑप्शन है पटको, मुगट, कुंडल के नथनी। तो हमें लिखना है कुंडल। कुंज गली में कृष्ण केवी रीते नाचे छे? तो खनक खनक, छनक छनक, छन छन के थनक थनक। तो हमें जवाब लिखना है थनक थनक। मीराबाईए पोतानी रचना कई भाषा में लखेली नथी? प्रश्न दोबारा सुन लेना कि मीराबाईए पोतानी रचनाओं कई भाषा में लिखी हुई नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि उन्होंने 4 भाषा में लिखी है, गुजराती, वज्र, हिंदी और राजस्थानी या तो मारवाड़ी। अगर ऑप्शन यहाँ ऐसा है कि गुजराती, वज्र, मराठी या राजस्थानी, तो हमें लिखना है मराठी। अब एक एक वाक्य वाले सवाल में बता दूं आपको कि वृंदावनना मार्ग में वालो शू मागे छे? तो वृंदावनना मार्ग में वालो दान, कर, वेरो ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं मागे छे। आ काव्य में वाहलो शब्द कोना माटे प्रयोजायो छे? तो आ काव्य में वाहलो शब्द भगवान कृष्ण माटे प्रयोजायेलो छे। अब 2-3 वाक्य में अगर सवाल पूछा जाए तो आ मोरली काव्य ने आधारे भगवान कृष्णना पहेरवेशનું वर्णन करो। तो जिनका जवाब है भगवान कृष्ण पीड़ा पीतांबर पहेरेलू छे, ते पण जरीथी भरेलो पायजामो छे, पीड़ो कमरे के मस्तक पर बांधवानो पट्टो छे, काने कुंडल अने मस्तक पर मुकुट पहेरेलो छे, मुख पर मोरली धारण करेली छे। दूसरा सवाल, भगवान कृष्ण क्या अने केवी रीते नाचे छे? तो भगवान कृष्ण मोरली वगाड़ता वगाड़ता वृंदावननी कुंज गली में थनक थनक थई नाचे छे। जो मारो विडियो तमने पसंद आवे होय तो तमे सब्सक्राइब करवो, लाइक करजो। थैंक यू।